Hello everyone, and now we are going to start chapter number 1 of biology life processes. So I am covering the topic from respiration. So my first topic is respiration. What is respiration? Respiration को मतलब बहुत लोग breathing भी समझते हैं, but ऐसा नहीं है. मतलब digestion of food and breakdown of food molecules into a proper form is known as respiration. It also involves breathing. Respiration are of two types: aerobic, anaerobic. So aerobic respiration involves एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड के ब्रेकडाउन हुआ जाता है, जिसमें ग्लूकोज जो है फर्स्ट चेंज इनटू पायरुवेट एंड देन फर्दर चेंज इनटू एनर्जी CO2 and H2O. And anaerobic respiration involves the breakdown of food molecules without the presence of oxygen. It involves two stages. First is alcoholic fermentation. Just in this type of anaerobic respiration, a type of alcohol is formed in which glucose is first break down into pyruvate and then into ethanol and energy molecules, ATP. एंड सेकेंड इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. सो मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गई कि ये जो मतलब प्रोसेस होती है ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, और ये जो प्रोसेस होती है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन में होती है. कौन ये सर ये एल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है वो आपने बोर्ड कवर कर दिया और आप ये बोल रही हैं तो कहाँ से समझ में आएगा. एल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन में होती है. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सर इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं होता है, और इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है बट एकदम लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है. व्हाट इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन? Sir, in lactic acid fermentation, glucose is first break down into pyruvate molecule and then into lactic acid. What And is pyruvate molecule? Why it is called pyruvate? sir, नहीं पता. then it is converted into lactic acid and energy. The energy is in the form of which form of energy is present there? ATP, What is the full form of ATP? adenosine triphosphate. And in respiration, first the
exchanges. First there is exchanges of gases. In human beings, oxygen is taken from atmosphere and it is inhaled by nostrils, in which cilia are present. Cilia and mucus are present, which helps to filter the air and remove the impurities from the air, and then the air enters into trachea, which is also known as windpipe, and then it enters into lungs. Lungs have also uh, two subdivisions, bronchioles. Bronchioles and bronchioles have also a balloon like structure present named as alveoli, in which the exchanges of gases take place. It is a thin balloon like structure which contains blood capillaries and arteries, जिसमें जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी के टिश्यूज से लेकर आकर ब्लड कैपिलरीज में फ्लो कराया जाता है, और उससे फिर वो लंग्स के थ्रू उस जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है CO2 वेस्ट मटेरियल, उसको रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर एक्सहेल कर दिया जाता है, और जो इनहेल करते हैं हम O2 ऑक्सीजन, उसको ब्लड वेसल्स में मिलकर पूरी बॉडी के थ्रू आउट सर्कुलेट किया जाता है, जो कि एक प्रोसेस होता है नेम्ड एज ट्रांसपोर्टेशन, जो कि हम आगे देखने वाले हैं. सो एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. एनिमल्स तो मैंने आपको बता दिया, जो ह्यूमन बींग्स में होती है सेम एनिमल्स में ही होती है, बट फिशेस और मैमल्स में भी सेम प्रोसेस होती है. बट एक काइंड ऑफ एनिमल आता है जिसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें ये प्रोसेस जो है वो मतलब इतने कॉम्प्लेक्स वे में नहीं होती है, सिंपल वे में होती है. जैसे 2 चैम्बर्ड हार्ट है उसका, तो एक से डीऑक्सीजनेटेड आएगा, दूसरे से ऑक्सीजनेटेड आएगा एंड डीऑक्सीजनेटेड निकलेगा. एंड माय नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स. ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स. You didn't tell about exchange of gases in plants. Yes, sir. Plants also perform exchanges of gases in daytime. A process of photosynthesis is occurring there. In this process, plants prepare their own food, जिसमें जो है वो इन्वायरमेंट से CO2 ले लेते हैं और ग्लूकोज फॉर्म करके ऑक्सीजन को बाहर रिलीज कर देते हैं. तो डे टाइम में ये ऐसे होती है, और एट नाइट टाइम CO2 जो है एकदम एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज होता है, और वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, बिकॉज रात के टाइम जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो रही होती है, इसलिए CO2 जो है एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज होता है. Can plants also respirate the gas? Can plants also respiration occurs in their body? No, sir, respiration is not occur, but transportation of gases occurs. तो आप कैसे बता रहे हो कि exchange of gases in plants is occur? सर, बिकॉज वहाँ पे एक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की. That is not called respiration. सर, रेस्पिरेशन में तो फूड का ब्रेकडाउन. Exchange of gases means photosynthesis. नहीं, फोटोसिंथेसिस से एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस होती है, क्योंकि एनवायरनमेंट से फोटोसिंथेसिस की वजह से डे टाइम पे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो है प्रोसेस होता है जो प्लांट का फूड बनाने के लिए यूज होता है, और प्लांट्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है. रेस्पिरेशन मतलब होता क्या है, पहले आप एक बार बताइए. रेस्पिरेशन मतलब ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स एंड इट आल्सो इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग. What is breathing? एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस. तो फिर आ तो गया respiration. सर, बट उधर ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स नहीं हुआ ना. तो ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा तभी रेस्पिरेशन होगा, ऐसा थोड़ा ना. जरूरी नहीं कि वो फूड मॉलिक्यूल का ही हो, जरूरी है फूड मॉलिक्यूल का ही वहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होके एनर्जी रिलीज करने को रेस्पिरेशन की प्रोसेस बोलते हैं. और प्लांट्स में जो ग्लूकोज रहता है उसके साथ ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी रिलीज करता है, और जो वो वाटर है वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर चले जाते हैं डिफ्यूजन के कारण. So my next topic is transportation in human beings. Transportation in human beings means generally मतलब
इजी भाषा में बोले तो ट्रांसपोर्ट ब्लड का सर्कुलेशन पूरी हमारी ह्यूमन बॉडी में उसको ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग बोला जाता Only है। blood? सर ब्लड का ही Only blood ट्रांसपोर्ट होता है हमारी बॉडी में? नहीं, और क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है? मिनरल्स और WBC सर्विसेज, प्लेटलेट्स और और ब्लड प्रोटीन्स के अंदर ही आता है जो प्रोटीन्स आपने इतनी सारी पॉइंट। सर प्रोटीन्स, और कार्बोहाइड्रेट, फैट्स पानी पीते हो कहाँ जाता है? बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर क्या सर्कुलेट नहीं होता क्या वो? तो आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड बोल रहे हो सिर्फ पानी, और क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट्स, ट्रांसपोर्ट होता है। चलिए ठीक है, आगे। और कार्बोहाइड्रेट्स, गैसेस इनहेल कर रहे हो आप? हाँ ऑक्सीजन गैस का क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। तो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन इज सिर्फ ब्लड थोड़ी ना है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिक्विड, व्हाटएवर यू कंज्यूम, सबका ट्रांसपोर्ट होता है। चलिए कंटिन्यू करिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ब्लड, ये एक जनरल क्वेश्चन अराइज होता है इस टॉपिक से। ब्लड इज अ कनेक्टिव फ्लूइड विच इज मोस्टली जनरली रेड इन कलर। इट इज रेड इन Blood is red in color. because hemoglobin present in blood. What is hemoglobin? Hemoglobin is a pigment that gives red color to the blood. Why hemoglobin पिगमेंट वो रेड क्यों रहता है? हीमोग्लोबिन में पिगमेंट रहता है, हाँ। तो पिगमेंट रेड क्यों होता है? वो आयरन रिच पिगमेंट रहता है, इसके कारण उसका कलर रेड हो जाता है और पूरे ब्लड का उसका कलर भी यही होगा, टॉप और बॉटम हटा देना आपको। सिलेंडर पता है? तो ब्लड के भी 4 सब पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा इट इज अ स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड। इट इज अ स्ट्रॉ कलर फ्लूइड जो कि ब्लड का 55% जो है वो प्लाज्मा ही होता है। और सेकेंड इज वाइट ब्लड सेल्स। इट हेल्प्स इन डेंजर सिचुएशंस लाइक कभी फॉरेन पार्टिकल्स एंटर हो गए बॉडी में तो वो हार्मफुल होंगे तो उससे बचाने के लिए भी हेल्प करता है। और नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स। जैसे कभी इंजरी हो जाती है, कभी मतलब लग वग जाता है तो ब्लड क्लॉटिंग वहाँ पे फॉर्म करता है प्लेटलेट्स, और ब्लड का मतलब बाहर बहना को रोकता है ब्लड। In which form platelets are present in our body? इन विच फॉर्म? किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स? सर लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म में? हाँ। कौन से कलर का रहता है? ये ट्रांसपेरेंट फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड स्ट्रक्चर।